Good morning, all of you. Today, I am going to in-house training myself, Nandlal Yadav, SST teachers. My topic is essential components of a lesson plan. In this topic, we learn about how to create how to creativity of a teacher in a lesson plan. Mainly, we read about we teach about students. We create a program, lesson plan. And what is the main essential components of a lesson plan? So, we will discuss about essential components of a lesson plan and how to read and how to teach in a lesson plan. What is the theory of a lesson plan? So, we will discuss about in this topic. I am so grateful to institutions and organization of CBSE to conduct in-house training, how to management, how to creativity in our schools, how to a good speaker and how to implementation in our students. So, my topic mainly we all here are present teachers and we learn and teach everything in every day in your life. So, learning and teaching is our main principles. So, we are a creator. Teacher job is a creativity job. So, CBSE learn, CBSE order, CBSE create a opportunity to each and every teacher how to implementation our rule and regulation in our school systems. So, we all are ready to preparation in your house, in your home, and how to teach a student in our class, and great performance in our school and great marks. I would like to tell you how to manage the school management. So, we focus the essential components of a lesson plan. I remember that in our B.Ed training, we have great opportunity to practicum in Aaj Kanya Vidyalaya Sahibganj Chhapra, Sarang. So, we learn and teaching about them how to headlines. We will go to learn, we will go to teach any student what students in which type of question ask you. We have fulfill the mindset and give the answer. Just like in this topic, essential components of a lesson plan. First, I would tell you about lesson plans, any headlines. Headlines, we go to our classrooms, we focus the headlines. जस्ट लाइक इसको हम लोग हिंदी में लेसन प्लान में प्रकरण बोलते हैं। प्रकरण में क्या है, जस्ट प्रकरण में हेडलाइंस में कि हमें आज बच्चों को क्या पढ़ाना है,
बच्चों को क्या पढ़ाना है हम लोग प्रिपेयर कर करके जाते हैं, और क्लासरूम में है सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसे इक्वल नहीं होते हैं। कोई जैसे इंटेलिजेंट भी में होता है, ज़्यादा फास्ट इंटेलिजेंट होता है, कोई बिलो में होता है, कोई जैसे एवरेज में होता है। तो उसके माइंड सेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जो टाइटल्स दे रहे हैं, जो प्रकरण दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एराइज करते हैं कि व्हाट इज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स या व्हाट इज द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेवल ऑफ क्लास। इफ यू गो टू सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल, you will fulfill the mindset, you will create a question and search the answer या utilize the components of a lesson plan. So we will focus the headlines. If you are a teacher of a SST, you will knowledge of the history, civics, geography, economics, so many subjects in SST, but you have knowledge, deeply knowledge in your subject and in your titles, how to teach in your classroom. Just like I am a teacher, yeah, I am teaching to civics. Today my class is running civics or my topic is president. So in this topic हम पहले क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एराइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट, फर्स्ट में हम प्रेसिडेंट का ही आंसर नहीं देंगे। हमारा क्या होगा, फर्स्ट में हम बच्चों से क्या करेंगे, एक्टिविटी लेंगे, क्वेश्चन एराइज करेंगे कि आप किस देश में रहते हैं, आपके देश का नाम क्या है। बच्चे जैसे एक्टिविटी, इंटरेक्शन यहाँ करना है, हमारे क्लास में हमको क्या करना है, इंटरेक्शन करना है। जो एक्टिविटी होता है, इंटरेक्शन मीन्स क्या, स्टूडेंट और टीचर का एक इंटरेक्शन होना चाहिए। जब हम एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक हम अपना 100% दे नहीं पाएंगे और बच्चे भी हमसे 100% ले नहीं पाएंगे। मेनली थीम यही है कि जब तक हम दोनों का क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं होगा, एक दूसरे से मेल नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको कुछ दे नहीं पाएंगे और हमसे कुछ ले भी नहीं पाएगा। और उससे हम क्लियरेंट, उसका जैसे जो साइकोलॉजिकल है, व्यू है, उसको भी हम समझ नहीं पाएंगे। सो डैट वी आस्क टू क्वेश्चन ऑफ द लेवल ऑफ द क्लास, जस्ट लाइक हु इज द करेंट प्रेसिडेंट इन योर कंट्री, या व्हाट इज द नेम ऑफ the president, या who is the prime minister. So any type of question related to I am asking students and know about the answer. So according to lesson plan we focus the creativity activity. So then after we preparation about the presentation. In headlines we prepare the headlines, या we prepare the presentation of president according to lesson plan. Just like you have listened the name of English management या English scholar Macaulay, who will discuss the lesson plan. A lesson plan is a teacher's detailed description of the course of instruction या learning trajectory for a lesson.
लेसन प्लान क्या होता है, टोटल जैसे एक आपका इंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है, यानी उसका पूरा हम लोग क्या करते हैं, पूरे जैसे क्लास का जैसे 40 मिनट्स या 35 मिनट्स का पूरा एक मूवमेंट हो जाता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रिपेयर कर करके और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बच्चे से क्वेश्चन एराइज करते हैं, उससे पूछते हैं, पढ़ाते हैं। ए डेली लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय ए टीचर टू गाइड क्लास लर्निंग। प्रतिदिन एक लेसन प्लान क्या करता है, एक टीचर के गाइड को विकसित करता है, यानी उसके सीखने की जो व्यवस्था होती है, बच्चों को सीखने सिखाने की, लर्निंग एंड टीचिंग की व्यवस्था को डेवलप करता है। डिटेल्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द टीचर्स, सब्जेक्ट बीइंग कवर्ड एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो विवरण होता है वो क्या होता है, टीचर के प्रेफरेंस के ऊपर निर्भर करता है कि किस टाइप के, जैसे एक ही टॉपिक है, एक ही टाइटल्स है, और अलग अलग जो टीचर्स हैं उसको अलग अलग से डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्शन करेंगे। मटेरियल एक ही है, लेकिन पढ़ाने का जो है थ्योरी जो है अलग अलग हो सकता है। मैथ है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट देखते हैं, अलग अलग अपना अपना पर्सनालिटी के हिसाब से लोग उसको क्या करता है, पढ़ाता है, उसको बच्चों में इंटरेक्शन कराता है। देयर मे बी रिक्वायरमेंट्स मैंडेटेड बाय द स्कूल सिस्टम रिगार्डिंग द प्लान, और इसके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाती है, लेसन योजना बनाई जाती है। इसको लेसन प्लान को हम लोग पाठ्य योजना भी बोलते हैं। इसे जो हम लोग का कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम में लेसन प्लान का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। ए लेसन प्लान इज द टीचर्स गाइड फॉर रनिंग ए पार्टिकुलर लेसन। लेसन प्लान एक टीचर का गाइड होता है, और क्या करता है, वो रेगुलर लेसन प्लान को रन करने के लिए, यानी रेगुलर लेसन को रन करने के लिए वो उसको आगे बढ़ाता है। एंड इट इंक्लूड्स द गोल व्हाट द स्टूडेंट्स आर सपोज टू लर्न, how the goal will be reached, the method, procedure and a way of measuring how well the goal was reached in test या वर्कशीट या होमवर्क etc। इसमें मेन क्या होता है, लेसन प्लान में हम लोग जस्ट लाइक देखते हैं, जैसे हेडलाइंस हो गया, हेडलाइंस में जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में हम लोग क्या करते हैं कि 35 मिनट्स या 30 मिनट्स या जो भी हमारा स्कूल मैनेजमेंट टाइमिंग का अलॉटमेंट करता है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। और बच्चों में क्या करते हैं, 100% जो है उसका यहाँ पे दो टाइप का वर्क होता है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। कहने का मीनिंग ये है कि हम कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर हमें रिजल्ट क्या मिले, 0 मिले, तो हमारा वो हार्ड वर्क क्या है, फेलियर है। हमारा मेन मोटो क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क, अगर हम कम टाइम ही पढ़े और रिजल्ट हमारा अगर 90% आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो सक्सेसफुल है, जो पढ़ाई हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो इनपुट हुआ है, कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और आज की डेट में, आज का डेट क्या है, कंपटीशन का डेट है, कंपटीशन का डेट है। कंपटीशन में क्या है, इसमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम स्मार्ट वर्क करेंगे, बच्चों को हम जितना जैसे जो हम जानते हैं उसमें अगर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया कि कैसे हमारे यहाँ सिस्टम है, किस तरह पे, जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम है कितना, जैसे हम लोग जो लेसन प्लान जैसे जो करते हैं उसको 100% में बच्चों ने कितना गेन किया, यही हमारा क्या है, अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट में हमारा क्या होता है, जिससे मान कर चलिए मैं अगर रिजल्ट दिया, मैं पढ़ाया, अगर 100% पढ़ाया और रिजल्ट हमारा 10% आया, तो यही हमारा अचीवमेंट हुआ। यहाँ पे हम 100% की बात नहीं करेंगे, 10% की ही बात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग लेसन प्लान क्या करते हैं कि
शॉर्ट पीरियड यानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान को, जो भी हमारा जो हेडलाइंस है, टाइटल्स है, प्रकरण है, उसको हम लोग बच्चों में क्या करें, उसको नॉलेज दे दे, उसको उसके बारे में जानकारी दे दें और उसके बारे में जो भी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दें। जो हमारा उद्देश्य है, जो गोल है बच्चों को सीखने का, इसे हम लोग ईच एंड एवरीवेयर वी आर कंडक्ट एग्जामिनेशन टू अचीवमेंट द गोल, यानी प्रत्येक साल यानी हाफ ईयरली होता है, फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन होता है। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे बच्चे में जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, कितना परसेंट है, क्या वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोटेड है, यानी प्रमोट करने लायक है कि नहीं है। देन आफ्टर अगर उसमें परसेंटेज नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको वहीं पे यानी उसको हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। और इसी के पर्पस में हम लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान का, यानी हम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए लेसन प्लान का प्रिपरेशन करते हैं। और लेसन प्लान एक गुड टीचर के लिए लेसन प्लान बहुत ही नीड है, बहुत ही उसकी आवश्यकता है और बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लेसन प्लान से हम टाइम टू टाइम, जैसे एट्रेनम एक ही दिन में अगर सारे मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाए, सब चीज़ों को दे दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या डिफर है, जैसे ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, मटेरियल तो आपको डिजिटल इंडिया में या डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी अवेलेबल है, बट उतना सेटिस्फेक्शन, उतना जैसे अचीवमेंट नहीं मिल पाता है जितना ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है। इसका रीजन क्या है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है। जो क्वेश्चन जैसे जस्ट लाइक प्रेसिडेंट है, क्राइटेरिया ऑफ प्रेसिडेंट है, या एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, या टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो तुरंत क्वेश्चन एराइज कर लेता है, वो कन्फ्यूजन को दूर कर लेता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, वो इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। वो जो सुन रहा है, जो स्पोक्स पर्सन है या जो टीचर है, वो जो मटेरियल अवेलेबल करा दिया है, उसके माइंड में सेट किया या नहीं किया, उसमें उसको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता है। इसीलिए अधिकांश जो है ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और उसका बेनिफिट भी लोगों को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे मेन क्लासेस ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसमें जैसे जो कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, while there are many formats a plan for a lesson plan, most lessons plans contain some or all of these elements typically in this order. टाइटल ऑफ द लेसन, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान में टाइटल ऑफ द लेसन लिखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो टाइटल ऑफ द लेसन, जैसे लेसन जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट मान कर चलिए, जैसे फर्स्ट है आपका सिविक्स में चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में क्या है, एज फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th है। अगर हम क्लास 9th में अगर पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, चैप्टर 1 है, अगर इसमें चैप्टर 1 है डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम चैप्टर 1 लिख कर करके, क्लास लिख कर करके, जो भी है डेमोक्रेसी का हम क्या करेंगे, टाइटल करेंगे। देन आफ्टर है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लेसन। उसके साथ साथ जैसे हम लोग टाइमिंग करते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम टीचर जाते हैं क्लास में, तो हम लोग मेन क्या करते हैं कि ऊपर में जैसे इस साइड में फर्स्ट में जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि सबसे जाते हैं तो ऊपर में डेट लिखते हैं। डेट जैसे आज डेट है 24 यानी 24 मार्च 2022। देन आफ्टर आपको क्या लिखते हैं, डेट लिख कर करके क्लास लिखते हैं कि क्लास कौन सा जाना है,
कौन से पीरियड में क्लास है। देन आफ्टर क्या लिखते हैं, पीरियड लिखते हैं, पीरियड जैसे फर्स्ट है या सेकेंड है। देन आफ्टर क्या लिखते हैं, डेट हो गया, क्लास हो गया, पीरियड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, जैसे टोटल स्ट्रेंथ हो गया कि कितने बच्चे हैं, सो डैट जो भी है। अगर टोटल प्रेजेंटेशन कितना है, सो डैट टोटल एब्सेंट कितना है। और जो टीचर क्लास ले रहे हैं, जैसे जो टीचर क्लास ले रहे हैं उनका नेम लिख करके जैसे लिख देते हैं। और यहाँ पे जैसे टाइटल्स, मैंने फर्स्ट में ही बोला कि जैसे जो होता है टाइटल्स ऑफ द लेसन, जैसे टाइटल्स में यहाँ प्रकरण में क्या लिख देंगे, जैसे लेसन का नाम लिख देंगे। जैसे डेमोक्रेसी है, अब इसमें डेमोक्रेसी में यानी डिफिनीशन ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी व्हाट इज द बेनिफिट या व्हाट इज द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी एक हम क्या करते हैं, इसका लेसन प्लान का एक जैसे हम हेडलाइंस लेते हैं, एक पॉइंट को लेते हैं और उसके बारे में यहाँ पे टाइमिंग भी होता है जी। टाइमिंग जैसे टाइमिंग जैसे है 40 मिनट्स का है, यानी कितना जैसे आपका पीरियड जो चलेगा उसको भी मेंशन करना होता है कि आपके यहाँ जैसे कहीं पे 35 मिनट्स का पीरियड होता है, कहीं पे आपका 40 मिनट्स का पीरियड होता है, उसके बारे में लिखते हैं। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स, और हमें कौन कौन सी मटेरियल की आवश्यकता है, जैसे टीएलएम के बारे में जानते हैं, जैसे टीएलएम में हमें क्या क्या आवश्यकता है, जैसे टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, जैसे आप चौक है, डस्टर है, बुक है, जो भी मटेरियल है उसको हम पहले ले जाएंगे और उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच में बी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स what the student can do at lesson complete, or knowledge objectives what the student known at lesson completion. The set that focus students on the lessons skill or concepts, the includes showing pictures or models। जैसे then after क्या करेंगे, एक सेट लेंगे। जैसे हम लोगों को क्या किया गया है, बताया गया है कि जैसे आपको जो स्किल पढ़ाना है, जैसे स्किल में क्या होता है, जैसे एक निगमन विधि होता है और एक आगमन विधि होता है, एक आगमन निगमन होता है। जैसे आपको पूर्ण है, अपूर्ण है, होल है, शॉर्ट है, जैसे अलग अलग जैसे विधियां हैं, तो किस विधि से हम बच्चे को वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। जैसे हम एक बार में ही 100, जैसे अगर 100 kg का, 50 kg का, 40 kg का वेट रख देंगे तो बच्चा से वो क्या होगा, बाउंस कर जाएगा। कहने का अर्थ है कि वहां पे उसको कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लास या अकॉर्डिंग टू सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का एक्टिविटी या उसके नॉलेज के पर्पज से हम विधि का सिलेक्शन करेंगे। कौन सी विधि, जैसे शॉर्ट फॉर्म में उसको बताएंगे कि लॉन्ग फॉर्म में बताएंगे, उसके हिसाब से हम सीट बनाएंगे, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे। These include showing pictures or models, asking leading question और reviewing previous lessons। फर्स्ट में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मॉडल्स ले जाएंगे। जैसे जस्ट लाइक मॉडल्स में क्या हुआ, जैसे टीएलएम हो गया, ऐसे जैसे तख्ती पे ग्राफ में जैसे टीएलएम रिलेटेड टू, जैसे आप जो सिविक्स क्लास ले रहे हैं तो कौन कौन से टीएलएम के आइटम्स है जिससे बच्चा समझ सकता है। यानी जैसे आप जैसे संसद, जैसे आप अगर ज्योग्राफी का क्लास है तो ग्लोब ले जा सकते हैं, एटलस ले जा सकते हैं। यानी आपका अगर इसका क्लास है, हिस्ट्री का क्लास है, तो जितने भी आर्चिव में जितने भी जो मटेरियल्स हैं, जो पुराने पुराने आइटम्स है, उसको ले जा करके शो अप कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, उससे इंटरेक्शन होता है। जैसे कहते हैं कि एक पेपर में और एक जैसे हॉरिजॉन्टल बेसिस पे दोनों में अंतर होता है। अगर ये हम बोलेंगे कि ये क्या है, अगर इस आइटम्स को दिखाएंगे तो सब लोग बोलेंगे कि ये डस्टर है। अगर केवल मैं मुंह से बोलूं कि ये डस्टर है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि डस्टर होता क्या है। यानी डस्टर भी कोई चिड़िया का नाम है या कोई पंछी का नाम है या कोई जानवर का नाम है, बहुत सारे। अब उतना तो डेवलपमेंट है नहीं उनमें,
भले क्लास में वो चले गए हैं लेकिन हर लेवल का अलग अलग ये होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, नज़दीक से उन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको दिखा करके भी उनको एहसास कराएंगे कि आपका क्या पोजीशन है। नहीं, बहुत सारी जो चीज़ है नाम सुना है लेकिन देखा नहीं है, तो जैसे ही दिखाएंगे बोलेंगे कि एंड्रॉयड सेट है, मोबाइल है, तो बोलेंगे कि क्या नाम है, तो तुरंत नाम बता सकता है अगर नाम जानता है तो। अगर नहीं जानता है तो क्या, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, दोनों टाइप से उसको शो अप करेंगे कि क्या है नहीं है। An instrumental component that describes the sequence of events that make up the lesson, including the teacher's instructional input and where appropriate guide practice by students to consolidate new skills and idea। जैसे इंस्ट्रूमेंटल कंपोनेंट्स भी ले जाना है, जैसे बहुत सारे जैसे साइंस के जो टीचर हैं, बर्नियर है, स्केल है, उन सब चीज़ों का भी आवश्यकता होता है। अगर हम ले नहीं जाएंगे, जस्ट लाइक अगर मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स के हैं जो स्केल है, चाहे जो भी वहाँ पे जो मेजरमेंट करने का जो पोजीशन है ले जाएंगे तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, टाइमिंग किलिंग नहीं होगा। तुरंत लिए, जिसका आवश्यकता हुआ उसको वहाँ पे शो अप कर दिए। अगर 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो तुरंत इंस्ट्रूमेंट है एंगल 45 का बना दिए कि किस टाइप का 45 डिग्री का एंगल होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल या ऑब्स्ट्यूस एंगल या राइट एंगल। जब तीनों में हम डिफरेंस करेंगे तो बच्चे को जाहिर सी बात है को कंसीडर कर लेगा, उसको जानकारी हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे बोलते रहे हैं कि ये एक्यूट है, ये राइट एंगल है और ये ऑब्स्ट्यूस है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएंगे, वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि क्या होता है, किस टाइप उसको हम ड्रॉ करेंगे। जस्ट लाइक हम जैसे अगर बात करते हैं, अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट है, लाइनिंग की ही बात करेंगे। 3 टाइप का लाइनिंग मैंने शो अप किया, अगर इस टाइप का दे दिया, वहां पे मेंशन नाम नहीं किया तो बच्चा को कंफ्यूजन होगा। वो तो जानता है कि ऐसे रेखा खींच दी है, लाइन खींच दी है, लेकिन जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, अगर इसी को हम बोलेंगे भी लगा दिए, एच लगा दिए और एस लगा दिए, तो वहां पे उसको इंडिकेशन हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जो लेटी हुई जो पृथ्वी के लेवल में है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो खड़ी लाइन है वो वर्टिकल लाइन है और जो तिरछी लाइन है वो सेलेंटिंग लाइन है। तो वहां पे उसका माइंड फिगर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और सेलेंटिंग लाइंस। तो तुरंत फिगर को कैचअप कर लेगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, वहां पे इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, उसको लेकर के चलना है। देन आफ्टर है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस दैट अलाउज स्टूडेंट टू स्टैंड स्किल्स और नॉलेज ऑन देयर ऑन सक्सेसिव सीक्वेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम कितना जान रहे हैं हम पे डिपेंडेंट नहीं करता है। मैंने लेसन प्लान दिया, जो भी टॉपिक क्रिएट किया, जस्ट लाइक जैसे प्रेसिडेंट के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन बच्चा ने कितना कैचअप किया हम उससे क्या करेंगे। सबसे यहाँ पे प्रैक्टिस का चीज़ है, यानी बच्चे को यहाँ पे लाएंगे बोर्ड पे, चाहे वहाँ पे क्वेश्चन आस्किंग करेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे कि बच्चा कितना कंसीडर कर रहा है, कितना जाना, तो वहाँ पे उसको टेस्ट भी ले सकते हैं। फिर से नहीं अगर हो पा रहा है जैसे, तो उसको क्या करेंगे हम कि नहीं हो पा रहा है तो फिर से हम लोग इसमें, जैसे हमने इसमें कंपोनेंट में लेसन प्लान में पहले ही बताया कि फर्स्ट में जैसे टाइटल्स हो जाता है, जैसे टाइटल में प्रेसिडेंट मैंने लिख दिया, जैसे टाइटल्स में लिख दिया। देन आफ्टर आपका है रिलेटेड टू टाइटल्स, जैसे रिलेटेड किससे रिलेशन है उसका रिलेशन हो गया। देन आफ्टर उसका प्रिपरेशन मैंने किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया, और देन आफ्टर आपका प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन में जैसे प्रेसिडेंट के बारे में व्हाट इज द क्राइटेरिया या व्हाट इज द एलिजिबिलिटी या व्हाट इज द फंक्शन या व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब के बारे में डिटेल में हमको बताना है।
कि हमारे यहाँ जैसे इंडियन प्रेसिडेंट अब होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन प्रेसिडेंट एंड अदर कंट्री, वी टॉक अबाउट contemporary world. In this time contemporary world there are many types of functions. In democracy in our country we accept the function of parliamentary system, but in our neighbor country doesn't accept the parliamentary system. So we will focus then the parliamentary system या presidential system. In what is difference between parliamentary system and आपको presidential system? दोनों तो प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन उसमें हमको क्या करना है, क्लेरिफिकेशन करना है, यानी उसको क्लैरिटी देना है कि ये भी प्रेसिडेंट है। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे प्रेसिडेंट है इंडिया हुआ, अगर यहाँ ही प्रेसिडेंट है यूएसए है, तो यूएसए का प्रेसिडेंट का क्या पावर है, फंक्शन है, क्या टेनियर है, इंडिया का फंक्शन क्या है, क्या टेनियर है, क्या उसका क्राइटेरिया है, दोनों में हम डिफर करेंगे तब जा करके क्लियर कंसेप्ट बच्चों में हो जाएगा, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा और कभी भी वो भूल नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में टोटली हम उसके बायोडाटा के बारे में शो अप करते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, जैसे ही आगे के बारे में हम लोग देखेंगे, the teacher should ensure that the succeeding as well as preceding knowledge is clear to the student. SC principle of absorption and integration. In the end, separation of the parts must be followed by their combination to promote understanding of the whole. जैसे यहाँ पे मेन थीम ये है कि टीचर अपने स्टूडेंट में अपने नॉलेज को कितना इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। जैसे हम जितना जानते हैं वो चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल बेसिस पे अगर बच्चों में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बच्चा जान रहा है कि नहीं जान रहा है, कितना उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग कैसे लेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर करके, जैसे प्रैक्टिस कर करके, जैसे मैंने आपको बताया आपने कितना गेन किया, वो यहाँ पे फिर हम आपको बुला कर करके उसके बारे में क्वेश्चन एराइज कर करके उसके बारे में उसका जैसे क्वेश्चन पूछ कर करके हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, और वैसे होगा तो 100% वो क्या हो जाएगा, उसके माइंड में वो जो प्रकरण है, जो टाइटल्स है, वो फीड हो जाएगा, बैठ जाएगा। एसोसिएशन कंपैरिजन, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल दैट न्यू आइडियाज और नॉलेज बी एसोसिएटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन बाय साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स and by drawing comparisons with the related concepts. This step is important when we are stabilizing principle or generalizing definitions. Generalizing, this concept is concerned with the systematizing of the knowledge learned. जैसे जनरलाइजिंग में क्या हो रहा है कि हम अपने कंसेप्ट को किस तरह बच्चों में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का कार्यकाल, फंक्शन, उसका क्राइटेरिया, किस तरह हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कितना नॉलेज वो प्राप्त कर रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन का प्रेसिडेंट का अगर बात करें तो यहाँ पे टेनियर 5 साल का होता है। अगर यही टेनियर की बात करते हैं तो यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है, 4 साल का ही होता है। दोनों में क्या है, गैप है। अमेरिका में 4 साल का ही कार्यकाल होता है, यहाँ पे 5 साल का होता है। अगर हम बात करें दूसरे कंट्रियों का, एज फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे डिफर कर जाता है, रसिया की बात करें तो वहाँ पे भी डिफर कर जाता है। तो अलग अलग जैसे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चों को ये जनरलाइज करना है, उसको कॉन्सेप्ट देना है कि हर जगह पे अलग अलग, जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सबका टर्म एंड कंडीशन यानी टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। देन आफ्टर है एप्लीकेशन, इट रिक्वायर्स ए गुड डील ऑफ मेंटल एक्टिविटी टू थिंक एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स लर्न टू न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, ये आप मेंटल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, अच्छे उद्देश्यों को, अच्छे जानकारी के बारे में अप्लाई कराया जाता है कि सिद्धांत क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं,
प्रिंसिपल्स में कुछ जैसे उसके जैसे आप बोल सकते हैं सिद्धांत हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि इंडिया का जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे वो 5 प्रिंसिपल को इंडिया क्या करता है, उसको एग्जिस्ट करता है। देन आफ्टर है रिकैपिटुलेशन, लास्ट स्टेप ऑफ द लेसन प्लान, द टीचर ट्राई टू ascertain whether the students have understood या grasp the subject matter or not। और सबसे जो अंतिम पॉइंट है इसमें कि बच्चा जो लेसन प्लान हुआ उसमें कितना सीखा, यानी कितना सीख पाया या नहीं सीख पाया, वो उसमें इन्वॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया। जैसे रेशियो जो होता है एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं और एक टीचर होते हैं, तो टाइमिंग तो बहुत जैसे एक एवरेज टाइमिंग होता है और 1 by 1 करके सब पे फोकस करना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जनरलाइज जैसे कॉमन क्लास हम लोग लेते हैं, तो कॉमन क्लास में क्या होता है, सबको एक समान लेकर के चलते हैं और उसमें कोई क्या होता है, कोई ज़्यादा तेज भी होता है, कोई ज़्यादा होता है, ज़्यादा जैसे पुअर भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन क्लास में क्या करते हैं, सबको एक जैसे लेवल में पढ़ाने वाला जो टीचर है वो तो एक टाइप का रिजल्ट दिया, एक टाइप का आपको टॉपिक दिया, एक टाइप का आपका इम्प्लीमेंटेशन दिया, लेकिन गेन करने वाले पे डिपेंडेंट करता है कि किस टाइप पे वो गेन कर रहा है। This is it for assessing and evaluating the effectiveness of the lesson by asking students question on the contents of the lesson or by giving short objectives to test the students' level of understanding. For example, to label different parts on a diagram etc. उसके बाद से in this topic we will discuss lesson plans and unit plans। इसमें जैसे जो पहले जैसे जो यूनिट प्लान होता था, आप लोग नाम सुने होंगे मॉरिसन का। तो मॉरिसन ने जैसे पहले क्या किया कि यूनिट प्लान पे ही ज़्यादा फोकस किया। तो इसमें लेसन प्लान और यूनिट प्लान में क्या डिफरेंसेस है, क्यों जैसे असफल हो गया मॉरिसन का यूनिट प्लान। इसके यूनिट जो इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए लेसन प्लान जो होता है, क्यों यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ए वेल डेवलप्ड लेसन प्लान रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो सुनियोजित डेवलप लेसन प्लान होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने प्लान को, अपनी योजनाओं को किस पे, हितों पे। जैसे जो बच्चे का आवश्यकता है, जो हित है, जो उससे लगाव है, बच्चे की आवश्यकता है। जिसे कहने का अर्थ है कि बच्चे की आवश्यकता है उसके बारे में प्रैक्टिकल का। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम में क्या है, बुक और थ्योरी में, यानी प्रैक्टिकम और थ्योरी में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। थ्योरी हम लोग कराते हैं और प्रैक्टिकम उस टाइप पे फोकस नहीं हो पाता है। उस टाइप का फोकस नहीं होने से बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे बच्चों की नीड के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, थ्योरी भी देना है और उसको प्रैक्टिकम भी करना है। इट इनकॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द एजुकेशनल फील्ड। और यह क्या करता है, एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही जैसे प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस है। मैथ का आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो सब आपका जीरो है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का है। जैसे एसएसटी में लोग बोलता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, रियली एसएसटी इज बोरिंग सब्जेक्ट, बट क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें जैसे मेंशन नहीं करते हैं। मैंने देखा भी है, हम लोग को भी कुछ जैसे अनुभव है, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। बहुत जैसे इंटेलिजेंट बच्चे भी आते हैं, बच्चों का जो सेशन है चलता रहता है। टीचर का भी हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ रोज दिन सीखते हैं। बच्चों से भी सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, सोसाइटी से भी सीखते हैं, और किस टाइप का है सब चीज़ यहीं पे सीखना है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशनल फील्ड हो या आपको बिजनेस फील्ड हो या आपका प्रोफेशनल फील्ड हो या आपका सोशल फील्ड हो, सब चीज़ में आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग है ये कंप्यूटर से भी फास्ट है और स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करने का हम लोग के पास उस तरह का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इतना स्टोर होता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन भूलने की भी बात है, जितना हम लोग स्टोर करते हैं उतना भूल भी जाते हैं। इधर से स्टोर करते हैं, इधर भूल जाते हैं। भूलते हैं कब? जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब। द लेसन प्लान कोरिलेट्स विद द टीचर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन which is what the teacher feels is the purpose of educating the students। लेसन प्लान क्या होता है? एक टीचर का दर्शन होता है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे दर्शन हर लोगों का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे ही है, टीचर्स हैं चाहे हमारे सोसाइटी के जो भी लोग हैं, सब लोग एक माइंडसेट के नहीं हैं। एक ही सब्जेक्ट है, एसएसटी है। अगर 4 तरह के टीचर हैं तो एक ही चीज को, एक ही डिफिनीशन को 4 तरीके से पेश करेंगे। उनके माइंडसेट पे डिपेंडेंट करता है कि सोसाइटी को किस व्यू से देखते हैं। उसी तरह एजुकेशन में भी होता है कि वो अपने फिलोसफी को, जैसे मानकर चलिए हम लोग फिलोसफी में क्या होता है, जैसे गांधीयन फिलोसफी हो गया, गांधी का दर्शन है, अरस्तु है, अलग अलग टाइप के लीडर्स का नाम हम लोग जानते हैं, फिलोसफर का नाम जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जिसके जैसे अगर हम लोग जाएंगे कार्ल मार्क्स के विषय में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स ही सबसे सुपीरियर है। अगर हम लोग कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कैपिटलिस्ट ही सबसे सुपीरियर है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर? जब ह्यूमन बीइंग है तो गरीब और अमीर की बात क्या है? यहाँ पर रिलीजन कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया? तो कहीं ना कहीं एक उसका रीजन है। और यही चीज जो है टीचर्स फील करता है और बच्चों में क्या करता है, वो अपने पर्पस को शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन करता है। जब इंट्रैक्शन होगा तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मानकर चलिए मैं सेकुलर माइंड का हूँ या जैसे ट्रेडिशनल माइंड का हूँ या आपको नेशनलिस्ट माइंड का हूँ, जब रिएक्शन हम करेंगे, रिएक्ट करेंगे तभी तो पता लगेगा, तभी तो आप डिफरेंस करेंगे कि नहीं आप किसको प्रीफर कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी इंग्लिश प्रोग्राम लेसन प्लान्स फॉर एग्जाम्पल यूजुअली सेंटर अराउंड 4 टॉपिक्स। दे आर लिटरेरी थीम, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड कंपोजिशन, लिटरेरी हिस्ट्री एंड लिटरेरी जेनर। ए ब्रॉड thematic lesson plan is preferable because it allows a teacher to create a various research। जैसे अगर सेकेंडरी इंग्लिश प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं लेसन प्लान जो होता है तो उसमें उदाहरण के तौर पे दे रहा है कि इसमें सेंटर में 4 टॉपिक्स होते हैं, केंद्र में 4 बिंदु होते हैं, 4 टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे लिटरेरी थीम क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट का भी थीम आया है जल जीवन हरियाली। जल है तो जीवन है और जीवन है तो हरियाली है। अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, अभी देख रहे हैं जो थीम चल रहा है, जो सुपर पावर का स्टार्टिंग हुआ है, सब लोग जानता है, लेकिन कोई ना कोई उस पर रिएक्शन नहीं कर रहा है। रिएक्शन नहीं करने का मीनिंग ये है कि 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। सब जानता है, इसलिए बोलता है इंडिपेंडेंट बनिए, यानी खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी क्रिएट कीजिए, अपना बचाव यानी अपना सेफ्टी अपने पास रखिए। यानी आप अगर कोई जैसे अगर डिक्टेटर हो गया है, अगर हम बोलेंगे कि डिक्टेटर आप हैं तो तुरंत रिएक्ट कर देगा, तो रिएक्ट होगा तो आपको एक्शन लेना होगा और एक्शन का मीनिंग ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको भी हरासमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो जितने ब्रॉड के जितने भी आपको स्कॉलर्स हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो लोग अलग अलग 4 जो थीम है, जैसे आपको लिटरेरी थीम है यानी साहित्य का क्या थीम है,
एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के तत्व क्या हैं, क्या क्या उसके तत्व हैं, कौन कौन से चीज़ों को उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। जैसे रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो रोमांटिसिज्म में कौन कौन से चीज़ों पे फोकस जैसे पोएट करता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से हम इंटरेक्शन करेंगे। आगे है आपका कंपोजिशन, लिटरेरी हिस्ट्री, जैसे इतिहास क्या है, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इतिहास का कोई मीनिंग ही नहीं है, आज की डेट में उसका कोई पर्पस ही नहीं है, बट इट इज नॉट राइट। जैसे इतिहास का बहुत बड़ा पर्पस है, क्या हम अतीत से सीखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं किए हैं तो उसका क्या हमारे ऊपर साइड इफेक्ट रहा है, और उससे हमारा जो हित है, जो इंटरेस्ट है, और जो हमारा जो एनिमी है, दोनों को हम डिफरेंट करते हैं, दोनों में अंतर भांपते हैं और अपने को सेफ जोन में रखते हैं। इसलिए हम लोग हिस्ट्री पे भी फोकस करते हैं और लिटरेरी जेनर, जिसे हम अपने जनरेशन को शिक्षित करते हैं कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग असाइनमेंट्स, it helps an instructor teach different literature genres and incorporate video tapes, films and television program. Also it facilitates teaching literatures. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाते हैं। जैसे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग इंडिया की बात करें चाहे विश्व की बात करें तो 8000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं, जो 8000 से भी ज़्यादा लोग भाषाओं का यूटिलाइजेशन करते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग स्क्रिप्ट है, अलग अलग मीनिंग है, तो लोगों को क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज उसको हम लोग लिखना सिखाते हैं। जैसे मान के चलिए तमिल है, उर्दू है, बंगाली है, मराठी है, तो उसको लिखना पहले सिखाते हैं, देन आफ्टर आपको बोलना सिखाते हैं। बच्चा देखते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग जो एडोलेसेंस एज में आते हैं, जब बच्चे चाहे जो आपका चाइल्डहुड में रहते हैं, चाहे आपको अपर एज में जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, स्टेज जो होता है चेंजेज होते जाता है। आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ के लोग इंग्लिश फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, एक्टिविटी है, यहाँ इंग्लिश का इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, और इसी की वजह से हम लोग उतना जैसे फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। अगर इंडिया में ही बात करें साउथ का, तो वहाँ पे कल्चर एक्सेप्ट है, मदर टंग है, बट उसको जनरल तौर पे इनिशियल स्टेज से इंग्लिश पे फोकस करता है। बट हम लोग क्या करते हैं, अपने हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो मदर टंग है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। वीडियो दिखाते हैं, फिल्म्स दिखाते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम दिखाते हैं। इट फैसिलिटेट्स टीचिंग लिटरेचर, यह फैसिलिटी क्या करता है, ये आपको टीचिंग लिटरेचर का आपको सुविधा प्रदान करता है। ए समरी वेयर द टीचर रैप्स अप द डिस्कशन एंड आंसर क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएशन कंपोनेंट्स टेस्ट फॉर mastery of the instructed skills or concept such as set of questions to answer or set of instruction to follow. A risk assessment where the lesson risk and the steps taken to minimize them are documented. Analysis components the teacher uses to reflect on the lesson itself, such as what worked and what needs improving. A continuity components review and reflects on content from the previous lessons. हम लोग प्रीवियस लेसन से क्या करते हैं, अपने कंटेंट को लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। जैसे मान कर चलिए रिव्यू सिस्टम में, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं चाहे जो भी है वो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किए हैं। अभी जैसे मान कर चलिए अगर वी टॉक अबाउट 50 years ago, द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज so bad according to modern time. In the timing of 1947, what is difference between 2022 and in the situation of 1947 in our country and the situation of 2022 in our country? अगर हम सिचुएशन में डिफरेंसेस करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, बहुत बड़े यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है। जैसे डेवलपमेंट किस में हुआ है
तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने को रिव्यू करेंगे, अपने जो थीम है, अपना जो मोनोपोली है उसको चेंज करेंगे कि कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। इस कंटिन्यूटी को हम रिव्यू करते रहते हैं और अपने कंटेंट को प्रीवियस लेसन से उसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं कि हमने जैसे आज की डेट में, जैसे पहले हमारे यहाँ क्या था, कॉलोनियल स्टेट था ब्रिटिश का, देन आफ्टर हमने क्या किया, सबसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया, उसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया, जिसमें फाइनल अथॉरिटी जो कौन है, तो हमारे यहाँ पब्लिक है। कोई भी अगर गवर्नमेंट रन कर रही है तो उसका एक टाइमिंग है, टाइमिंग में जैसे फिक्स टाइमिंग है कि अगर आप डिक्टेटर हैं चाहे कुछ भी है 5 साल ही रहेंगे, देन आफ्टर हम आपको चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर है हर्बर्टियन अप्रोच या फ्रेडरिक हर्बर्ट, ये एक फिलोसफर हैं और इन्होंने जो फ्रेडरिक हर्बर्ट है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1776 और इनका डेथ हुआ है 1841 में। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट there are 8 lesson plan phases that are designed to provide many opportunity for teachers to recognize and correct students misconceptions while extending understanding for future lessons. These phases are, first है according to Herbert and Frederick Herbert there are main phases. फर्स्ट फेज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, हम फर्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया, फाउंडेशन और स्थापना के बारे में बताया, ब्रेन एक्टिवेशन जैसे किस तरह ब्रेन एक्टिविटी में है, बॉडी ऑफ न्यू फॉर्मेशन और बॉडी के न्यू जो फॉर्मेशन है उसके बारे में, क्लेरिफिकेशन, प्रैक्टिस एंड रिव्यू, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड क्लोजर, और लास्ट में जैसे क्या होता है, क्लोजर होता है। यानी ये 8 जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने लेसन प्लान का 8 टॉपिक प्रोवाइड किया है। फर्स्ट में प्रिपरेशन या इंस्ट्रक्शन, इट परटेन्स टू प्रिपेयरिंग एंड मोटिवेटिंग चिल्ड्रेन टू द लेसन कंटेंट बाय लिंकिंग इट टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट बाय अराउजिंग क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रेन एंड बाय मेकिंग ऑन अपील टू देयर सेंस। दिस प्रिपेयर्स द चाइल्ड माइंड टू रिसीव न्यू नॉलेज, to know where the pupils are and where they should try to be are the 2 essential of good teaching. Lesson may be started in the following manner: at 2 or 3 interesting but relevant questions. B. Showing a picture, a chart or a model. C. A situation statement of aim, announcement of the focus of the lesson in a clear, concise statement such as today we shall study the। यहाँ पे मेन क्या किया गया है, इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करा सकते हैं। देन आफ्टर है प्रेजेंटेशन एंड अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्बर्ट, एंड फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 8 लेसन प्लान के कंपोनेंट दिए हैं। यानी वी आर डिस्कस एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए लेसन प्लान। सो according to Frederick Herbert there are 8 types of lesson plans. Second है presentation या development, the actual lesson commence here. This step should involve a good deal of activity on the part of the students. The teacher will take the aid of various devices, that is questions, illustration, explanation, expositions, demonstration and sensory aids etc. On information and knowledge can be given, explained, revealed or suggested. The following principles should be kept in mind: a principle of selection and division. The subject matter should be divided into different sections. The teacher should also decide as to how much he is to tell and how much the pupils are to find out for themselves. Principles: the first thing for setting a lesson plan is to create an objective, that a statement of purpose for the
purpose for the whole lesson. An objective statement itself should answer what students will be able to do by the end of the lesson. The objective drives the whole lesson plan. It is the reason the lesson plan exists. The teacher should ensure that lesson plan goals and compatibly within the developmental goal level of the students. The teacher ensure as well that the student achievement expectation are reasonable. Then after है डिलीवर ऑफ लेसन प्लान. कैसे हम डिलीवर करते हैं अपने लेसन प्लान को. द फॉलोइंग गाइडलाइंस वेयर सेट बाय कैनेडियन काउंसिल ऑन लर्निंग टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग प्रोसेस. फर्स्ट है एट द स्टार्ट ऑफ टीचिंग प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विथ ए ओवरऑल पिक्चर ऑफ द मटेरियल टू बी प्रेजेंटेड. When presenting material, use as many aids as possible and a variety of familiar examples. Organizing the material so that it is presented in a logical manner and meaningful units. Try to use terms and concepts that are already familiar to the students. यहाँ पे मेन क्या किया जा रहा है, जब भी हम लोग डिलीवर प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को कितना डन किया प्रेजेंटेशन में, टोटली हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसको 1 to यानी अप टू डाउन जितने यानी कहने का थे जो प्रेजेंटेशन में जो क्राइटेरिया है फुलफिल कर दिए. और फुलफिल करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जैसे जस्ट लाइक रिवीजन जरूरी है. यानी प्रेजेंटेशन के बाद जैसे फिर से क्वेश्चन हम करेंगे कि जैसे क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे ने केवल स्टोरी को वो एक्सेप्ट किया या कुछ उससे गेन भी किया. अगर केवल स्टोरी इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो हमारा जैसे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का जो भी क्लास हुआ या जो भी मैंने घर पे लेसन यानी 40 मिनट या 30 मिनट प्रिपरेशन करके आया तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पे हमको क्या होगा कॉन्फिडेंस या हमको जैसे क्या होगा फिर जैसे हमको अपना जैसे नहीं आ पाएगा. देन आफ्टर फिर से हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए रिवीजन कर लेंगे. रिवीजन करने का अर्थ है कि जो प्रेजेंटेशन किया उस पर फिर से एक बार रिवाइज कर दिया. जैसे मान कर चलिए शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करा दिए, उसके बारे में डिटेल में नहीं शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ में बता दिए. सबसे लास्ट जो फंक्शन है रिवीजन के बाद आपका क्या है होमवर्क. लेसन प्लान में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है होमवर्क. अगर आप होमवर्क नहीं दिए तो आपका पूरा लेसन प्लान ही पूरा लेसन ही क्या हुआ फेलियर हो गया. यानी कहने का अर्थ है कि हम क्लास में गए पूरा डिटेल दिए पूरा स्टोरी कह दिए और होमवर्क नहीं दिए. होमवर्क जब देंगे तो बच्चा कितना गेन किया है कितना सीखा है, घर पे जाएगा तो उसका फिर से रिवीजन करेगा, फिर से उसको प्रैक्टिस करेगा. तो जैसे जस्ट लाइक जैसे क्वेश्चन देंगे 5 या 10 देंगे तो पढ़ने के लिए क्या होगा वो विवश होगा. अगर नहीं होमवर्क करके ले जाएंगे तो फिर अगले दिन क्लास में हमें टीचर क्या करेंगे डांट करेंगे या मारेंगे चाहे पनिशमेंट करेंगे. तो इसलिए हमको सबसे जैसे लेसन प्लान में जो भी पॉइंट है आपको जो अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान है जैसे हार्वर्ड फ्रेडरिक है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड फ्रेडरिक उनके हिसाब से ओके होमवर्क जो है ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है. सो आई एम ग्रेटफुल to all of you to listen me essential components of a lesson plan. Thank you.